ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ ਮੇਨਲੀ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 1 2 3 4। ਇਹ 4 ਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 360 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਐਂਗਲਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 360 ਡਿਗਰੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਆਰ ਗਿਵਨ 80 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 135 ਡਿਗਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਵਿੱਚ 2 ਐਂਗਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ 80 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 135 ਡਿਗਰੀ। ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ 2 ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਐਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਐਕਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ 2 ਐਂਗਲਸ ਆਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਐਂਗਲਸ, ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਐਂਗਲਸ ਇਨ ਅ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 360 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ 360 ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ 80 + 135 x + x ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 360 ਡਿਗਰੀ। 135 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। 135 ਅਤੇ 80 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 215 + 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 360 ਡਿਗਰੀ। 215 ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 360 - 115। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, 360 ਨੂੰ 215 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 145। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 145। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢਾਂਗੇ 2 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 145/2। ਹੁਣ 145 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 72.5। ਮਤਲਬ ਈਚ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 72.5 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦ 4 ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਆਰ ਇਨ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਐਂਗਲਸ ਹੈ, ਆ ਚਾਰੋਂ ਐਂਗਲਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਨਾ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 3x ਹੈ, ਅਗਲਾ 4x ਹੈ, ਦੈਨ 5x ਹੈ, ਦੈਨ 6x ਹੈ। ਰੈਂਡਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 3, ਇੱਥੇ 4 5 6 ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗਲਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਸ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ, ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿਓ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ 6 5 11 15 16 17 18 18x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 360 ਡਿਗਰੀ। x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 360/18। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਡਿਗਰੀ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3x ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3x ਆ ਜਾਊਗਾ 3 × 20। 4x ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 × 20। 5x 5 × 20। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, 6x ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 × 20। ਇਹ ਐਂਗਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਊਗੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋਲਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ 2 ਐਂਗਲਸ ਗਿਵਨ ਹੈ 90 ਅਤੇ 150। ਕੀ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ 2 ਐਂਗਲਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ 3 ਐਂਗਲਸ ਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਔਨ ਅ ਲਾਈਨ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਐਂਗਲਸ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਆਹ 90 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ A ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 90 + A ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਆ ਜੂਗਾ 30 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾਇਓ, ਆ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਤੇ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 90 + 30, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ y ਹੈ, ਪਲੱਸ y ਐਂਗਲ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 9 10 11 9 10 11 12 ਪਲੱਸ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 60 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਹ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 60 ਡਿਗਰੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ y ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਐਂਗਲ ਪਿਆ, ਤਾਂ 60 + x ਰੱਖ ਦਿਓ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ 4 ਸਾਈਡਡ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ 4 ਸਾਈਡਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ठीक है। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n-2 × 180 ਡਿਗਰੀ, मतलब कि n मतलब नंबर ऑफ साइड्स आ कोऑर्डिनेटर ਵਿੱਚ 4 है ना, 1 2 3 4 नंबर ऑफ साइड्स है, तो पुट कर दो 4 - 2 × 180 डिग्री, तो कितना आ जाऊगा 2 × 180 डिग्री दैट इज़ 360 डिग्री। तो जे 4 साइडेड होवे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप 360 डिग्री बराबर रखता। जे सिमिलरली कोऑर्डिनेटरल 5 साइडेड होवे, जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेटरल 4 साइडेड ही होंदी है, कोऑर्डिनेटरल 5 साइडेड भी हो सकती है, 6 साइडेड भी, 4 साइडेड भी, कोई मर्जी कोऑर्डिनेटरल आ सकती है। हुण जिवें आ वाली कोऑर्डिनेटरल है, ये वाली कोऑर्डिनेटरल देखो 1 2 3 4 5 साइड्स है, तो इन्हां विच आपां सारे सम ऑफ एंगल्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेटरल 360 बराबर नहीं रखांगे, क्योंकि 4 साइडेड नहीं गा, ये 5 साइडेड है। तो 5 साइडेड ला सम कादे बराबर रखांगे, आप फॉर्मूले जो पहला फाइंड आउट करांगे। फॉर्मूला सेम वही 2n - 2 × 180 डिग्री, n की वैल्यू कितनी है 5 - 2 × 180 डिग्री 3 × 180, तो कितना आ जाऊगा अपने को, देखो सॉल्व कर लो इनू, 180 × 3 करोगे तो आंसर आ जाऊगा थोड़े को 540। मतलब आ वाले क्वेश्चन में तुसी सम ऑफ ऑल एंगल्स जोड़े है 540 के बराबर रखोगे। पेपर में भी अगर आ गया कि 4 साइड्स गिवन है फिर 360 रखना है, जे 5 साइड्स 6 साइड्स हो 6 साइड्स भी अकॉर्डिंगली तुसी n - 2 × 180 डिग्री फॉर्मूला यूज़ करके उतों चैक कर लो कि मतलब मैं कादे बराबर उन्होंने रखना है। ठीक है, तो हुण मैं सैकेंड पार्ट करवा दी है। सैकेंड पार्ट देखो आप आ वाली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला लीनियर पेयर ला के आ कढ़ लियो, लीनियर पेयर ला के आ कढ़ लियो, लीनियर पेयर ला के आ कढ़ लियो, फिर सारी कोऑर्डिनेटरल दे एंगल्स का सम की है 360 के बराबर रख के आ वाला एंगल कढ़ लियो। आ एंगल कढ़न तो बाद नाल दा एंगल जिहड़ा वो लीनियर पेयर च है, लीनियर पेयर ला के सॉल्व कर लियो। नैक्सट क्वेश्चन किवें करोगे, देखो सारे एंगल लीनियर पेयर च लग रहे हैं, 45 दे नाल दा लीनियर पेयर, आ भी लीनियर पेयर, आ भी लीनियर पेयर ते आ भी लीनियर पेयर, ये सारे एंगल्स का जोड़, एक आ वाला एंगल, ये सारे एंगल्स का जोड़ 540 के बराबर रख के आ वाला एंगल फाइंड आउट कर लियो। आ एंगल प्लस एक्स नूं 180 डिग्री रख दो, उतो लीनियर पेयर ला के अपने को एक्स की वैल्यू आ जाऊगी। फोर्थ क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटरल इज़ 5 टाइम्स द फोर्थ एंगल। कोऑर्डिनेटरल दे विच जिहड़े 3 एंगल्स है वो जिहड़े हैगे 5 टाइम्स है। जे फोर्थ एंगल एक्स है, जे फोर्थ एंगल एक्स है तो जिहड़े 3 एंगल 5 टाइम्स है, ये सारे फिर अपने को 5x है। ठीक है, आप फाइंड आउट की करना है, फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है, अपना चौथा एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप तो किवें करांगे, x + 5x + 5x + 5x बराबर 360 डिग्री। चंगी तरह सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू नूं फाइंड आउट कर लो। 3 एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटरल आर इन रेशो, ਜਿਹੜੇ कोऑर्डिनेटरल ਦੇ ਵਿੱਚ 3 एंगल्स है, एक 4x है, एक 5x है, एक अपने को 6x है। ठीक है, द सम ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इज़ 160 डिग्री। इन्हां विचों सब तो छोटे ते सब तो वड्डे दा सम, सब तो छोटा ते सब तो वड्डे दा सम आपां नूं 160 डिग्री गिवन है। आपां बाकी कोऑर्डिनेटरल दे एंगल फाइंड आउट करने हैं, तो ये की करो 6 + 10 इत्थे आ जाऊगा 160 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 160/10, एक्स की वैल्यू आ जाऊगी अपने को 16। तुसीं आ वैल्यू आ किवें फाइंड आउट करोगे, सम ऑफ ऑल्स, इनू सम ऑफ ऑल रख के ना, जिवें इत्थे एक्स की वैल्यू 16 आ गई, इत्थे पुट कर दो 4 × 16 करके आ वाला एंगल आ जाऊगा, 5 × 16 करके आ वाला एंगल आ जाऊगा, 6 × 16 करके आ वाला एंगल आ जाऊगा। ठीक है, सारे एंगल्स का जोड़ इनू वाईलेट कर लो, सारे एंगल्स का जोड़ बराबर 360 रख के वाई की वैल्यू तुहाडे कोल सॉल्व हो जाऊगी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन अपने को द 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटरल आर 80 डिग्री एंड 120 डिग्री। अपने को कोई भी एक कोऑर्डिनेटरल है, उहदे 2 एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होंदा नाल नाल दे एंगल्स, या तो नाल दे एंगल्स आ हो सकते हैं, या नाल दे एंगल्स आ हो सकते सी, या आ वाले हो सकते सी। आप 2 नाल दे एंगल ले लेने, 2 एडजेसेंट एंगल्स जिहड़े 80 डिग्री ते 120 डिग्री है। द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, जिहड़े बाकी 2 एंगल है वो दोनों इक्वल है, दोनों एंगल्स इक्वल है। फाइंड करने आप किवें फाइंड आउट करांगे, बस सम ऑफ ऑल एंगल्स का की करो बराबर 360 ला के ये तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लियो। ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। आ वाली फिगर में आप एक्स ते वाई फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। ये की है एंगल सम प्रॉपर्टी ला दो कि 110 + 85 + 60 + x बराबर 360 डिग्री। ठीक है, उतो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लियो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो इधर साइड हो जाऊगा, फिर इत्थे लीनियर पेयर ला दो, आ वाली चीज़ से 60 ते वाई ते लीनियर पेयर ला के इत्थे अपने को वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाऊगी। क्लीयर, नैक्सट अपने को एक्सरसाइज 16.2
फर्स्ट क्वेश्चन है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम। ये ना हम पैरलोग्राम की गल आ गई। पहला पैरलोग्राम का केस सुन लो भी की हुंदा पैरलोग्राम। पैरलोग्राम विच एक्चुअली दो साइड्स पैरलल होंदियां, मतलब या तो आ साइड ये पैरलल है या आ साइड ये पैरलल है। ठीक है, दो साइड्स इदा पैरलल होंदियां साइड्स एदियां। ते पैरलोग्राम विच की हुंदा है, आ साइड ये बराबर हुंदी है, आ साइड ये बराबर हुंदी है। आह ये आ वाली ऑपोजिट ये बराबर है, प्लस इहदे एंगल्स भी इक्वल हुंदे आ। आ वाले एंगल के बराबर हुंदा ऑपोजिट वाले, ते आ वाला एंगल के बराबर हुंदा है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स जिहड़े हुंदे 360 हुंदे आ। एज सच पैरलोग्राम हुंदा है कि जिहड़े आ दो एंगल्स का सम हुंदा है वो 180 डिग्री हुंदा है। क्लीयर, ये सारा कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ उन्हें दोबारा दस दिंदी है। दो आ साइड ये बराबर हुंदी है, आ साइड ये बराबर है, आ एंगल सामने वाले एंगल दे बराबर है, आ एंगल आ सामने वाले दे एंगल बराबर है। तो जिहड़े दो एडजेसेंट एंगल्स है, आ दो एंगल एडजेसेंट बराबर 180 डिग्री हुंदे है, या आ दो एंगल एडजेसेंट बराबर 180 डिग्री है, या आ वाले एंगल्स। ठीक है, सारे एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री हुंदे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने कोल टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरलोग्राम इज दिस एंड दिस। पैरलोग्राम दे विच दो एडजेसेंट एंगल्स का मतलब नाल दे एंगल्स अपन नूं गिवन है 2x ते 7x। जो रेशियो च होण तां 2x ते 7x हुंदे है। फाइंड ऑल एंगल्स, बाकी सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। जे आ 2x है ये सामने वाला भी 2x होगा, जे आ 7x है ये सामने वाला भी 7x होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स पैरलोग्राम दे विच बराबर होंगे। तुसीं ब्रैकेट च लिखना जरूरी है। क्लीयर, प्रॉपर तुसीं लिखियो पी क्यू आर एस, तुसीं लिखियो एंगल एंगल एस पी एस आर क्यू बराबर एंगल एस पी क्यू, ब्रैकेट च लिख दो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल। सारा कुछ तुसीं इदां लिखना है। ठीक है, हुण आपां बाकी सारे एंगल्स लभने की करियो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम नूं बराबर रख दिओ 360 के बराबर। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिओ, एक्स की वैल्यू इन्हां विच पुट कर दिओ। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है इफ एन एंगल ऑफ पैरलोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। जे पैरलोग्राम विच एक एंगल एक्स है तो दूजा एंगल 2/3 है उहदे एंगल दे। इफ एंगल ऑफ अ पैरलोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम। एंगल्स लभने हैं, जे आ एक्स है आ भी एक्स होगा, जे आ 2/3x है तो आ भी 2/3x होगा। तो की करो सम ऑफ ऑल एंगल्स नूं की है बराबर रख दिओ 360 डिग्री दे। 360 डिग्री के बराबर रखने तो बाद एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये एक्स की वैल्यूज़ नूं पुट कर दिओ। ठीक है,